A very good morning to all of you. I hope all of you are doing well. Today we'll be starting up the chapter Journey to the End of the Earth. अच्छा, अब ये चैप्टर जो हम रीड करेंगे, इट हैज़ बीन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इसमें से 9th या 10th में जोग्राफी में इट वाज अ पार्ट ऑफ एसएसटी. सो ये जो चैप्टर है बेसिकली इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द जर्नी टू अंटार्कटिका, कि किस तरीके से जो नरेटर हैं वो अंटार्कटिका गई and it was a dream. She's an Indian basically. So first I would love to tell you about the author Tishani Doshi. Tishani Doshi जो हैं, she's an Indian poet basically. She is journalist also. She's a very good dancer also. She has published 6 books of poetry and fiction. अच्छा, इनके जो एसेज हैं, पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो भी बहुत अप्रिशिएट होती हैं. तिशानी का एक नॉवल है द प्लेजर सीकर्स. इट वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज. हर पैशन फॉर डांस मेड हर लीड डांसर इन चंद्रलेखा ट्रूप एंड टूर्ड मेनी कंट्रीज परफॉर्मिंग ऑन स्टेजेस. मतलब आप ये देखो कि शी इज़ अ वेरी गुड डांसर ऑल्सो, शी राइट्स एसेज एंड शी इज़ अ नॉवलिस्ट टू. When it was there that she currently contributes to an interview series for the Hindu and Open magazine. Now, about the characters, only the author, that is Tishani Doshi, herself narrates her experiences while she traveled to Antarctica, which is the coldest continent in the world. And Doshi is of the opinion that Antarctica is a place to go and understand the Earth's present, past, and future. She accompanied a team of students visiting Antarctica under Students on Ice project, and it was being headed by Canadian Geoff Green. Now, she had a thrilling experience exploring the ice mysteries on the ice region. Now, let's start with the chapter that the journey to Antarctica begins. Now the narrator, she heads towards Antarctica and इन्होंने एक रशियन रिसर्च वेसल पर ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च की थी. एंड द नेम ऑफ दिस रशियन रिसर्च वेसल वॉज अकेडमिक सुखाल्स्के, राइट. और शी रिवील्स दैट अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट continent in the world. Now she commences her journey from Madras, crosses 9 time zones. 9 time zones here are the 9 countries, because जो different countries में different time zones होते हैं. 6 checkpoints, 3 water bodies and many ecospheres to reach her destination. Ecosphere is where the life survives. Now, traveling over 100 hours, she feels relief that wonders about the isolation of the continent and the historic time when India and Antarctica, they were the part of same landmass. और उस landmass का नाम क्या था? गोंदवाना. ठीक है, गोंदवाना मतलब जब ये रिसर्च के लिए गए इस रशियन रिसर्च वेसल में, तो ये गई थी एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ग्रुप को लेकर गई थी. और इन्होंने अपनी जर्नी मेड्रॉस से शुरू की थी. इन्होंने बहुत सारे जैसे 9 टाइम जोन्स इन्होंने क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 वाटर बॉडीज़ क्रॉस की और बहुत सारे इकोस्पेयर्स क्रॉस किए. तब इन्हें वहाँ पता चला कि जो ये है अंटार्कटिका, इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना. मतलब गोंडवाना जब एक सिंगल प्लेस था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, व्हेन इट वाज बीन, जब उसके पार्ट्स हुए तो अंटार्कटिका वाज वन ऑफ इट. Now the narrator takes the reader back to 650 million years. At that time, Antarctica was a part of giant amalgamated southern supercontinent called Gondwana. मतलब ये क्लियर है कि अंटार्कटिका की एग्जिस्टेंस जो है वो 150 ईयर्स पहले भी थी. तब वो किसका पार्ट था? एक गोंदवाना का पार्ट था, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था. At that time, humans had not arrived. And the climate was warm and there was a huge variety of flora and fauna. Flora and fauna, all of you know, I think.
and for around 500 million years, Gondwana existed. Eventually, the landmass broke up and was forced to separate into two countries. And this shaped our present globe. मतलब जब गोंदवाना का डिवीजन हुआ, जब गोंदवाना सेपरेटेड हुआ, then it was being separated into two countries. अब जो ये नरेटर हैं, she wanders at Antarctica and she finds it blissful. अच्छा, इस पूरे चैप्टर में जो बात हुई है, दैट इज़ अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, कि किस तरीके से जो है हमें अपनी मदर अर्थ को सेव करके रखना है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है. Now, belonging to a relatively warm country, the narrator, who is a South Indian, is shocked to be in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored. And she feels that she is walking into a giant ping pong ball. There is no human life. There is nothing to show that human life exists on this planet. She is surrounded by mites, blue whales, and limitless expanse of huge icebergs. The surreal 24-hour summer lights, and there was a silence that is to be interrupted only by breaking up of iceberg is mind-blowing. मतलब यहाँ अब नरेटर को ये लग रहा है कि जो अंटार्कटिका है, शी हैज़ रीच्ड देयर, अंटार्कटिका शी हैज़ रीच्ड, और साउथ इंडिया से मतलब जहाँ वो रहती थी, कि जहाँ पर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड. मतलब अब वो एक ऐसी प्लेस पर हैं जहाँ पर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड. देन कम्स कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हुआ ऑन द एनवायरमेंट. ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ऑन द अर्थ फॉर अबाउट 12,000 years. And in this short span of time, we have changed the face of our environment for worse. मतलब सबको पता है. अभी भी आप देखो, if you correlate with the example, कि अभी हम अब लॉकडाउन के टाइम जो है डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं कि अब गंगा जो है उसमें पॉल्यूशन कम है, यमुना में पॉल्यूशन कम है, देन द पीपल दे आर पोस्टिंग द पिक्स. तो मतलब कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, चाहे हम इस चीज़ को माने या ना माने. That particular time it was there that we have changed the face of our environment for worse. We have dominated the earth by establishing cities and mega cities, मतलब modernization. Then this has led to encroachment of mother nature, and we are limiting resources on the planet for other creatures. मतलब एक sustainable development का हम सोच ही नहीं रहे. And then it is, the increasing population, the average global temperature is rising, and the blanket of carbon dioxide around the world is increasing. तो यहाँ पर जो पूरी बात की गई है, इस चैप्टर में जो बात की गई है, इट इज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कि पास्ट में जो अंटार्कटिका है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना. जो प्रेजेंट है, इट इज़ व्हाट वाज द ह्यूमन इम्पैक्ट. ह्यूमन इम्पैक्ट का जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं नेचर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन द थिंग्स फॉर द कमिंग जनरेशंस. एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर, कि इसका फ्यूचर क्या होगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. जस्ट क्विक रिव्यू, एक 2-3 पॉइंट्स में फटाफट हम इसको रिव्यू करेंगे कि क्या आज हमने पढ़ा. एक है कि नरेटर जब वो गई, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, इट वाज एकेडमिक सोलास्के. जब वो एक रशियन रिसर्च वेसल में अपने हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ गई थी रिसर्च करने, शी वाज अ साउथ इंडियन. किस तरीके से उन्होंने ये एनालाइज किया, किस तरीके से उन्होंने ये रिसर्च की कि अंटार्कटिका इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, अ सुपर कॉन्टिनेंट, और किस तरीके से ये कहा कि व्हाट इज़ द ह्यूमन इम्पैक्ट, कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो हो रही है, वाई इट इज़ अ सीरियस इशू. अगर हम अपना नेचर को हार्म करते हैं, सो इट इज़ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो उसके रिपरकशंस होंगे, इट विल बी विथ अस ओनली, इट विल बी ऑन ह्यूमन बीइंग्स ओनली. थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.